हाँ, तो आज बेटा हम लोग करेंगे बूलियन अलजेब्रा पे थोड़े एमसीक्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन बूलियन अलजेब्रा द और ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय विच प्रॉपर्टी। सो देयर आर प्रॉपर्टीज गिवन, सो यू हैव टू चूज द ऑप्शन फ्रॉम दिस। और किस में यूज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये और ऑपरेशन इसमें एसोसिएटिव लॉ पे चल रहा है, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और ऑपरेशन चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस सी। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द एब्जॉर्प्शन लॉ। अमंग देम एब्जॉर्प्शन लॉ कौन सा है। a प्लस ए डॉट ए इक्वल टू ए, ये है एब्जॉर्प्शन लॉ। देखिए इसको यूं कर सकते हैं a डॉट वन प्लस ए डॉट बी, ठीक है। a डॉट वन में से a कॉमन है, वन प्लस बी आया, वन प्लस बी इक्वल टू वन, सो a डॉट वन आ जाएगा और a डॉट वन इक्वल टू a, ठीक। दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर आल्सो, प्रूफ इज गिवन, you can see that. Next question, according to the Boolean law a plus 1 equal to what? A plus 1 equal to a plus 1 equal to a 1, a की वैल्यू 0 1, 1 की वैल्यू 1, ठीक है। a plus 1, 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 1 equal to 1, so a plus 1 equal to 1 only. All right, so you were saying option A. The involution of a is equal to, involution of a is equal to डबल डैश होता है, डबल डैश है, वो इन्वॉल्यूशन हुआ ए का, तो ये दैट विल बी इक्वल टू ए ओनली, ठीक है। द इन्वॉल्यूशन ऑफ ए मीन्स डबल इन्वर्शन, डबल इन्वर्शन विल गिव यू द सेम रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dot 1 plus b equal to, let's solve this, let's open this bracket, it will become a dot a plus a dot b, a dot a equal to a a b। अब एब्जॉर्प्शन लॉ लग जाएगा, a कॉमन है, 1 प्लस b आया and 1 plus b equal to 1, so it is the result is a only, d option is correct. Okay sir. So the explanation is there. Next question, we have to recognize which one is the De Morgan's law. So answer A is correct, De Morgan's law, a dot b whole complement equal to a complement plus b complement. A plus b in one bracket, in another bracket a complement dot b complement, what will be the answer? So your answer would be 0. So let's solve this. You can solve this using two ways. You can write this a dot a complement dot b complement, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, plus b dot a complement b complement, okay। Now this a dot a complement will be 0, 0 dot b complement, and another side b dot b complement is 0, 0 dot a complement, or 0 dot anything is 0 only, so 0 plus 0 equal to 0,
One way you can get the 0 like this, or other way is also there. सॉल्व करें इसको, हम लिखेंगे a प्लस बी, और a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं a प्लस b होल कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ. So if you take a dot b as x dot x complement equal to 0. Okay, sir. Fine. So next question. Complement of this expression a complement b plus c dot d complement. Complement means you have to find the whole complement of this expression. So here we need to apply De Morgan's law. Yes, sir. It will become a complement b dot c dot d complement का whole complement. Now further solving, it will become a double bar plus b bar c bar plus d double bar. It means a plus b bar and c bar plus d. So now what is your answer? We have to find which one is there. B is the correct answer. Yes, sir. B is the correct answer. So now the next question is simplify. Now you take out your pen and paper and simplify it. And let's see ये कैसे सॉल्व होगा. ठीक है. Yes, sir. तो यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट है प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी को डी मॉर्गन लॉ लगा के उसको लिखा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. डॉट सी. राइट. अब ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को आप मान लें अगर x, इट कैन रिटन एज x प्लस x कॉम्प्लीमेंट c. राइट. Yes, ये sir. x प्लस x कॉम्प्लीमेंट c. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया जाए तो हो जाएगा x प्लस x कॉम्प्लीमेंट और x प्लस c. x प्लस x कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो बचा x प्लस c. अब x की जगह वापस हम लिख सकते हैं a b बार. ठीक है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दिस इज ऑल्सो गिवन इन एक्सप्लेनेशन. The question is saying the Boolean function a plus b dot c is reduced form of, if you closely observe this, ये a plus b dot a plus c के इक्वल है Distributive. क्योंकि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप सीधे बता सकते हैं. ठीक है. इवन एक्सप्लेनेशन में इट इज बीन सॉल्व. ये बी वाले ऑप्शन को सॉल्व करके दिखाया गया किस तरह से ए के ए ओरिजिनल के बराबर आ रहा है. ठीक है. इसको अगर आप ओपन करें तो ए डॉट ए को इससे, फिर ए डॉट सी, फिर ए बी और फिर बी सी आएगा. ठीक है. उसके बाद पहले तीनों में यहाँ ए डॉट ए को आप ए लिख सकते हैं, फिर ए पूरे में कॉमन है तो आएगा ए कॉमन लेने के बाद 1 प्लस सी प्लस बी. ये देखिए, और 1 प्लस कुछ भी तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 होने के बाद ये बचेगा ए प्लस बी सी. ठीक है. इसको समझिए ध्यान से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट. सम ऑफ प्रोडक्ट इसी में बता रहा है. सम ऑफ प्रोडक्ट. सो दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट इज शॉर्ट हैंड फॉर्म. SOP is the correct answer. Now next question. AB plus BC plus AC shows the which operation? POS. SOP. अच्छा. XOR का ये एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, NOR का भी नहीं होता है. ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. इवन दिस इज नॉट अ कैनोनिकल फॉर्म, दिस इज नॉन कैनोनिकल फॉर्म. द करेक्ट ऑप्शन इज दिस.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट हो रहा है इस सम का, तो सिंपली कैन से दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, राइट। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स ए एक है, दूसरा वेरिएबल बी है, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो ये क्या बता रहे हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिन टर्म्स को, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स है तो वो कहलाते हैं मिन टर्म। ऑल राइट, यस सर। द canonical sum of product form of the function y(ab) equal to a plus b is, तो हमें पीओएस एक्सप्रेशन निकालना है a plus b का। So we have two methods of doing it. Either we can do using truth table or we can do using Boolean algebra. So let's do with the help of Boolean algebra a plus b. a के साथ b मिसिंग है तो हम b plus b कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और b के साथ a मिसिंग है तो यहाँ a plus a कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। Now open this, it will become ab plus ab complement plus ab plus a complement b. ab is used two times as x plus x equal to x होता है, इसको एक ही बार लिखा जाए, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑल राइट, यस सर। a variable on its own and in its complement form is known as, variable on its own or its complement form is known as product term, sum term, literal और word। और है तो प्लस लगाए तो हम कह सकते हैं सम टर्म होगा ये। ये तो आंसर अलग हो गया। अच्छा, कोई वेरिएबल a variable on its own and its complemented form is known as, यानी वेरिएबल कोई भी a या a बार या b या b बार को हम बूलियन लिटरल्स कहते हैं, राइट। बूलियन लिटरल्स, फिर ओनली लिटरल इज गिवन, दैट्स फाइन। So let's go for next question. Maxterm is the sum of dash of the corresponding minterms with its literal complemented. Terms. Terms is the correct answer. Sum of terms. So that is the definition of maxterms. Canonical form is a unique way of representing Boolean expressions. Boolean expression which will take SOP भी canonical हो सकता है, POS भी canonical हो सकता है, तो we'll say Boolean expression. There are dash minterms for three variables. There will be 8. कैसे? Because three variables are there, so number of possibilities will be in truth table. There will be 8 possibilities to the power 3 possibilities. That is 8.
So there may be possible कि all output as one. It may be tautology. तो 8 tautology हो गए तो 8 possible combination बन गए. Yes, sir. Next question. Dash expression can be implemented using either two-level AND or logic circuit or two-level NAND logic circuit. What kind of expression can be implemented using AND or circuit or NAND? तो अगर NAND से हमें सर्किट बनाना है तो हमें लिए सबसे सुटेबल होता है SOP एक्सप्रेशन. ऑलराइट, SOP एक्सप्रेशन के को NAND से बनाने के लिए हमें सिंपली रिप्लेस करना होता है AND को OR से और AND को NAND से और OR को NAND से, और बन जाता है इजीली. Yes, sir. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. There are dash cells in the 4 variable K map. 16. In 4 variable K map, how many cells are there? 16. Pardon? 16. 16. So there are 16 cells to the power 4 equal to 16 cells. 4 by 4 का हमें K map बनाना रहता है. Now the next question is, product of some expression can be implemented using POS है, एंड और से रिप्रेजेंट हो सकता है, नॉर से भी रिप्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, तो इसके आंसर ए और बी दोनों सही हैं. सो हियर द फोर्थ ऑप्शन इज सेइंग बोथ एंड और एंड नॉर लॉजिक. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. ऑलराइट, Yes, sir. हमने नॉट और नॉर लॉजिक, नैंड और नैंड लॉजिक पढ़ा हुआ है. अच्छा, हाँ. रूल नंबर 1 जो बताया था उसमें इजीली से हो जाता है. हाँ. In which of the following gates the output is 1 if and only if at least one input is 1? And नहीं, sorry, और ठीक है, और में कोई भी एक इनपुट अगर 1 है, दोनों में से 3 में है तो भी कोई भी एक 1 आ जाए तो आंसर 1 आता है, आउटपुट 1 आता है. What is the minimum number of 2 inputs NAND gate used to perform the function of 2 input OR gate? OR गेट को अब NAND से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कितने कम से कम आपको चाहिए NAND गेट. अब इसको बताने के लिए आपको OR को NAND से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. ठीक है, सो कुड यू आंसर दिस? 2 gates. देखिए, OR है A प्लस B. A plus B can be written as 3 complement of A plus B. अब हमें NAND बनाना है, हमने यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया, तो ये NAND आ गया. ठीक, अब हम इस A नॉट को हम लिख सकते हैं A डॉट A और B को लिख सकते हैं B डॉट B. ठीक, नाउ आई एम राइटिंग दिस साइड. ये है A NAND A. NAND का सिंबल होता है अप एरो, B NAND B और ये बीच में NAND. तो यहां हमें दिख रहा है 3 NAND आ रहे हैं. ठीक है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ आंसर सी कैसे आ गया ये हमने डिस्कस करके देख लिया. तो इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं कोई भी गेट के बारे में, तो पूरा उसको सॉल्व करके देख लें किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं. ऐसे ही वाइल्ड गेस नहीं करेंगे. Is this the output of the logic gates is 1 when all the inputs all logic gates are 0 as shown below. यहां पहले में देखा दोनों 0 है तब आउटपुट 1 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है
तो कह रहे कौन से लॉजिक गेट की बात हो रही है, ये कौन सा सर्किट है, पहले के बारे में बताया, दूसरे के बारे में नहीं बताया। पर ये दो ट्रुथ टेबल दे रखे हैं, दोनों ट्रुथ टेबल को देख करके हमें बताना है कि कौन से गेट की ट्रुथ टेबल है। दोनों सेम है क्या? पहली वाली किसकी है और दूसरी वाली किसकी है? पहली वाली ट्रुथ टेबल नॉर की है, ठीक है, दैट इज करेक्ट। सेकेंड वाली एक्सक्लूसिव नॉर की, एक्सक्लूसिव और जो बोलते हैं एक्स नॉर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इवन नंबर ऑफ इनपुट 1 होने पे 1 आ रहा है, ये वाला और ये वाला, तो ये एक्स नॉर है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज दिस। इसका हम लॉजिक गेट बनाएंगे तो हमें कितने एंड गेट की जरूरत पड़ेगी? हम इसका लॉजिक गेट कैसे बनाएंगे? इसका लॉजिक गेट ऐसे बनाएंगे, सी डी को एंड गेट से भेजा, फिर ई एफ को एंड गेट से भेजा, फिर सबको और से ठीक, कनेक्ट कर दिया। फिर ये एक और लिया और ये यहाँ पे जी भेजा और ये इस लॉजिक गेट में आपको दो एंड गेट की जरूरत पड़ी है। इतना ड्रॉ किए बिना भी हम देख सकते थे, यहाँ पे सिंपल सा एक्सप्रेशन है सी डॉट डी, कितनी बार डॉट लगा? 2 बार, तो 2 एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, ओके सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ द इनपुट्स आर, हाई का मतलब 1, नॉर गेट में आउटपुट 1 कब आएगा, कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन में 1 आएगा? नॉर गेट को इसमें कोई भी किसी बच्चे को डाउट होता है कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप गेट बना लीजिए, आप टोटल बना लीजिए, ए प्लस बी है, ये और बना 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। फिर ये आया 0 1 1 1, तो इस पे नॉट लगा दीजिए, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ये नॉर हो गया, तो 1 0 0 0, तो आउटपुट 1 आ रहा है जब ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, यस सर। which statement below best describes a K-map? Option A. Option A, it is a simply a rearranged truth table using which we can simplify the Boolean expression. This question is there, which of the example below expresses the commutative law of multiplication? So D is the correct option, commutative law तो A भी है, but A is commutative law of addition है। The Boolean expression y equal to a dot b whole complement is logically equivalent to which logic gate? That is a dot b. हाँ, a dot b complement is, we can say this is NAND gate. Not and. Not and, right. So an explanation is also given. You have to go through the explanation because इस आंसर के सिवा आप जब एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे देन ऑल्सो यू कुछ भी आपके जो उतना आपको आता है उसके सिवा कुछ और भी चीजें उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी और रिवाइज भी हो जाएगा, yes, ठीक। The observation that a bubbled input OR gate is interchangeable with a bubbled output AND gate is referred to a
और गेट एंड गेट से चेंज हो जाता है, किस में कहाँ चेंज हो जाता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है? तो आंसर इज बी। डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ और जो है वो एंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. the systematic reduction of logic circuit is accomplished by systematic reduction using Boolean algebra। Boolean, हाँ, ठीक है, के मैप में जहां जहां वन लिखते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? high input. हाई। ठीक है, हाई, a high for each input to table condition that processes a high output, जहां पे आउटपुट हाई आया हो। ठीक है, आउटपुट में वन है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम वन लिखते हैं। Yes, sir. Which of the following statement accurately represents the two best methods of logic circuit simplification? Boolean algebra and Karnock mapping. Let me go through this. Which of the following statement accurately represent the two best methods of logic circuit simplification? Actual circuit trial and error evaluation and waveform analysis. K-map and circuit waveform analysis, Boolean algebra and K-map, and Boolean algebra and actual circuit trial and error। तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी सर्किट के सिंप्लीफिकेशन का, बूलियन अलजेब्रा के थ्रू कर सकते हैं और के मैप के थ्रू कर सकते हैं। Yes, sir. Which of the following expression is a sum of product form? Which of the following is a sum of product form? B. A plus B dot C plus D. A. If you go through the all, you will get which one? B. हेलो, A POS है, ठीक है, B क्या है, ना SOP है ना POS है, ठीक है, पर अब D को देखो तो क्या है, दिस इज अ सम ऑफ टू प्रोडक्ट्स। Oh, yes, yes. ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following expression is in the product of some form? Product of some form. A. Option A is correct. The following, which of the following is the product of some form? A में product हो रहा है some form में, A is the correct answer.